Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another video on Saws or Shays must watch complete video for interesting knowledge, and don't forget to like my video and subscribe my channel and also share with your friends. Related to Al-Bukhari or Muslim, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جادو، کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ناحق قتل کرنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال ہڑپ کرنا، اور جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا، پاک دامن گناہ سے بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع 7 ہلاکت خیزیاں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 7 ہلاکت خیزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو، قتل ناحق، سود خوری، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، بے خبر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ شرک کا لغوی معنی حصہ دار اور ساجے پن کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا عبادات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار یا سانجی ٹھہرانا یا ماننا اور تسلیم کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات، شرک فی الاحکامات، شرک فی الہوا، خواہشات کی بندگی۔ اس حدیث میں دوسری چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ جادو ہے۔ لغت میں سحر سے مراد پوشیدہ اور لطیف سبب ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور انہیں ڈرایا بڑے جادو کے ذریعے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بیان اور تقریریں جادو کا سا اثر رکھتی ہیں۔ سحر، جادو جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، وہ ایک فن ہے، کیونکہ یہ مہارت اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک باطل علم ہے۔ حقیقی جادوگر بہت کم ہیں جو ابلیس کے نائب، انتہائی درجہ کے شاطر، مکار اور فریب کار ہوتے ہیں۔ تعویذ، دم اور گرہیں باندھنا اور ان میں پھونکنا وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو دلوں اور جسموں میں اثر انداز ہوتے ہیں اور کبھی بیمار کر کے قتل تب کر دیتے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ سورہ فلق میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: اور گروہ میں پھونکے مارنے والی جادوگرنیوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو نہ ہی اس سے کسی شر کا اندیشہ ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیتا۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنے جادو کے زور پر لاتعداد رسیوں کو سام بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین میں پھینکے، چنانچہ وہ عصا اسحا بن کر ان کے سب سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہ ہوگا۔ لبید بن اعظم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو رفع کرنے کے لیے سورہ فلق نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تو ارشاد فرمایا، ان اللہ شفانی، بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے شفا دی ہے۔ جادو سیکھنا کفر ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلاکت کا سبب فرمایا۔ جادوگر کی سزا یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جادوگر کو تلوار سے اڑا دیا جائے۔
इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी वफात से कबल अपने आमलों को लिखा था कि हर जादूगर और जादूगरनी को कत्ल कर दिया जाए, अलबत्ता अगर वो तौबा कर ले तो इसका रास्ता छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये शिर्क से बड़ा गुनाह नहीं है। जब मुश्रिक की तौबा कबूल हो सकती है तो जादूगर की क्यों नहीं। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह अल माइदा आयत नंबर 32, जिसने किसी जान को किसी जान के बदले के बगैर कत्ल किया या ज़मीन में फसाद की खातिर कत्ल किया तो गोया इससे तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। कत्ल नाहक इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सज़ा जहन्नम में हमेशा जलते रहना है। चनाचा इरशाद रब्बानी है सूरह अन-निसा आयत नंबर 93, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा इसकी सज़ा जहन्नम में हमेशा रहना है। अलबत्ता किसी की जान लेने की एक ही जायज़ सूरत है और वो ये है कि कातिल को मकतूल के बदले में कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए। इस हदीस में हलाकत में डालने वाली चौथी बात सूदखोरी को करार दिया। अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हिलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया। इरशाद रब्बानी है सूरह बकरा आयत नंबर 275, अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल ठहराया है और सूद को हराम करार दिया है। और इसी आयत में फरमाया कि सूदखोर यूं परेशान होंगे जैसे कि किसी इंसान को शैतान छूकर बेहोश कर दे। खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि आज से मैं सूद के मुकम्मल खात्मे का ऐलान करता हूँ और सबसे पहले आपने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद को माफ़ कर दिया। आजकल हमारी माइशत का पूरा पहिया सूदी निज़ाम के गिर्द घूम रहा है। कुछ लोगों ने दिली सुकून के लिए इसके मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं। बैंकों ने नफ़ा नुकसान शराफतदार PLS अकाउंट का नाम देकर इसे जवाज की सनद अता कर दी है, लेकिन बहरहाल ये सब शैतानी चालें हैं और सूद ही की कोई ना कोई शक्ल है जिसे कुरान और हदीस ने हराम करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इसे हलाकत का सबब फरमा रहे हैं। इस हदीस में हलाकत का सबब बनने वाली पांचवी बात यतीम का माल हड़प करना इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद में यतीमों के साथ उसने सलूक और इनकी निगाहत का हुक्म दिया और इनके अमवाल की हिफाजत के लिए फरमाया कि इसके माल के करीब भी न जाना, अलबत्ता अगर नेकी और इनकी बेहतरी की खातिर कोई सूरत कर सकते हो तो फिर तुम्हें इजाज़त है कि इनके माल को तजारत वगैरह में लगाकर इन्हें फ़ायदा पहुँचाओ। सूरह अल-सरा की आयत नंबर 152 में सूरह इनाम की आयत नंबर 34 में एक जैसा हुक्म दिया और फरमाया, और तुम यतीम के माल के करीब भी न जाओ सवाए उम्दा तरीके के, यहाँ तक वो जवान हो जाएं और खुद तसर्रुफ के काबिल हो जाएं। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 10 में इरशाद रब्बानी है कि बेशक वो लोग जो जुल्म करके यतीमों के माल खाते हैं, बिलाशुबा वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। गोया यतीम का माल खाना जहन्नम में जाने का सबब है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को हिलाकत का सबब करार दिया है। मुजाहिद का मैदान जंग में आखिरी सांस तक डटे रहना ही असल जहाद है। सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 45 में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, जब तुम किसी लश्कर से जंग करने लगो तो साबित कदम रहो और अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह अल-अनफाल में जा बजा हुक्म दिया कि मैदान जंग में साबित कदम रहो और पीठ न फेरो, बल्कि हर तरह के हालात में साबित कदमी के साथ मर्दाना वार मुकाबला करो। मुसलमानों को मैदान जंग में सिर्फ दो ही सूरतों में पीछे हटने की इजाज़त है, जब वो जंगी चाल के तौर पर पीछे हट रहे हों और पलट कर कुफार के लश्कर पर हमला करना चाहते हों। जब कोई मुजाहिद लड़ाई करता हुआ दुश्मन की फ़ौज में आगे तक निकल जाए तो वो अपने दस्ते से मिलने के लिए पीछे हटे। इन दो सूरतों के अलावा पीठ फेरने वाले अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक होंगे। इस हदीस में हलाकत में डालने वाली सातवीं बात
पाक दामन मोमिन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाना। इरशाद फरमाई, यानी वो भोली भाली और सादा लोहे पाक दामन बीवियां जिन्होंने कभी शायद घर से बाहर झांक कर भी ना देखा हो, इन पर बदकारी और बुराई का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई घटिया और कबीर फ़ाइल है और आपने इस अमल को हलाकत में डालने वाला फ़ाइल करार दिया है। सूरह अल नूर की आयत नंबर 23 में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग सादा लोहे पाक दामन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं बस इसी नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता करे और उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे जिन पर उसका इनाम है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।